shocking and a gruesome murder case has come to light from Lucknow, where a 19-year-old son allegedly killed his own father, dismembered his body and disposed it in a drum. What has stunned investigators even more is the level of planning behind the crime. The police says 19-year-old Akshat carried out the murder with meticulous planning. The accused allegedly killed his own father on 20th of February, stuffed his body into a drum and attempted to dispose of it after cutting off hands and legs. US discretion is advised. Gruesome details coming to light as far as the Lucknow horror is concerned. Investigators describe Akshat as calculative and composed. Even after committing the crime, he reportedly behaved normally and showed no signs of panic. On 21st of February, he even filed a missing persons complaint with the police while allegedly knowing the truth because he himself killed his father. He actively contacted the neighbors, appeared desperate to trace his father, and even created a WhatsApp group of relatives to coordinate the search, all in an attempt to avoid any possible suspicion. Police say that the motive appears to be control over his father's business and finances. The deceased, Manvendra Pratap Singh, owned 6 pathology labs, 2 liquor shops and lived in a luxurious house in Ashiana Sector L. He was originally from Jalgaon. Neighbors claim the father had imposed strict discipline on his son, which the teenager allegedly found unbearable. Akshat had earlier left home 3 years ago after a dispute but returned later. He was reportedly pursuing BBA after dropping plans of preparing for NEET and other competitive exams. Investigators also revealed chilling details about how he disposed of his father's body. Akshat allegedly filled a sleeping bag with cotton, wrapped the body tightly, sealed it inside the bag and then placed the bag in a blue drum. Police says that the sleeping bag, the larger quantity of cotton and drum were arranged in a highly calculated manner. Even more disturbing is that Akshat's sister, who was an 11th class student, was allegedly aware of the murder but did not inform anyone and continued behaving normally. In fact, late last evening, police recreated the crime scene to piece together the sequence of the events, and that's when more details came to light. My colleague Abhijit Thakur is joining us with more details. Abhijit, काफ़ी कैलकुलेटेड मर्डर बताया जा रहा है, जहां पर अक्षत, जो कि खुद एक यंग 19 साल के लड़के हैं, उन्होंने अपने पिताजी का न केवल खून किया बट बहुत मेटिकुलसली प्लानिंग करके किया। देखिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कई डिटेल्स इसमें सामने आ रहे हैं और पड़ोसियों से भी हमने बातचीत की। उन्होंने जिस तरीके की बात बताई है वो वाकई हैरान करने वाली है कि कैसे एक 19 साल का लड़का, जो कि जून महीने में 19 साल का होने वाला था, वो इस तरीके से एक मर्डर प्लान करता है, वो भी अपने पिता का। और मर्डर करने के बाद जिस तरीके से उसने बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश की, बारी बारी से उसके बॉडी पार्ट्स को कट करके और अलग अलग लोकेशंस पर फेंकना, और उसके साथ ही उससे पहले, यानी कि पहले से प्लानिंग चल रही थी इस मर्डर की, यहाँ तक कि वो एक मोबाइल ऐप के जरिए अपने फादर का लाइव लोकेशन ट्रैक करता था, कब वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कितनी देर वो ड्राइव कर रहे हैं, कितनी देर कहाँ पर बैठे हैं, तमाम चीज़ें वो ट्रैक कर रहा था। यानी कि इसकी प्लानिंग उसने पहले से ही कर ली थी। बहुत ही हैरान करने वाली ये घटना है। और घर में उसने हत्या की वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब घर में कोई भी मौजूद नहीं था। 4 फ्लोर का मकान है, सबसे टॉप फ्लोर पर ये परिवार रहा करता था, यानी कि फादर और उसके 2 बच्चे, ये दोनों भाई बहन रहते थे। उसके बाद वाले फ्लोर पर किराएदार, उसके बाद वाले फ्लोर पर उन्हीं के चाचा और उनकी पूरी फैमिली, और ग्राउंड फ्लोर खाली था। एक ऐसे समय में इस मर्डर को अंजाम दिया गया जब इस पूरी बिल्डिंग में कोई भी और व्यक्ति मौजूद नहीं था। 3rd फ्लोर पर शूट करके मर्डर किया जाता है और उसके बाद डेड बॉडी को ड्रैग करके ग्राउंड फ्लोर पर लाया जाता है। वहां पर उसकी कटिंग की जाती है, बॉडी पार्ट्स को अलग किए जाते हैं और केवल धड़ का जो हिस्सा था उसको स्टफ करके ड्रम में भरा जाता है। जिस तरीके से बॉडी की पैकिंग भी की गई थी वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से की गई थी कि कोई भी ब्लड पार्ट जो है वो बाहर ना आने पाए। कॉटन से रैप करने के बाद उसको प्लास्टिक में पैक करना, उसके बाद स्लीपिंग बैग में पैक करने के बाद उसको ब्लू कलर के ड्रम में स्टफ करके रखा गया। लेकिन उसके बावजूद जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस के सामने भी बहुत हैरान करने वाले डिटेल्स इसमें सामने आए हैं। हालांकि अक्षत से
अभी और भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन शुरुआती पूछताछ में उसने बताया कि पिता उसके ऊपर दबाव बना रहे थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने का, या फिर इस तरीके की बात कर रहा है वो कि पढ़ाई लिखाई की और फाइनेंशियल जो है वो रेस्ट्रिक्शंस रखते थे और इसकी वजह से, इसके फ्रस्ट्रेशन में उसने इस हत्या को अंजाम दिया। लेकिन पुलिस तमाम एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, जो मर्डर का तरीका है इसमें, वो काफी प्लान्ड लगता है और यही वजह है कि पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। Police पूछताछ कर रही है. In fact, what we're also given to understand that the police has recreated the entire scene. What's also shocking, which is coming to light, as my colleague is reporting, is that this was meticulously planned. The boy, in fact, had been planning this. He's been able to dispose of his father's body using cotton sleeping bag and a blue drum, which we saw on our screens. अभिजीत, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि इसमें बहन का क्या रोल रहा है, क्योंकि हमें बताया जा रहा है कि बहन को पता था कि शायद उसके पिताजी खतरे में हैं, पर उन्होंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। देखिए 20 तारीख से जो मानवेंद्र प्रताप सिंह है वो मिसिंग थे। उनके आस पड़ोस में जो लोग थे, जो उनसे रोज मुलाकात करते थे, मित्र थे, करीबी थे, उन लोगों ने जब अक्षत से इसके बारे में पूछा तो पहले उसने कहा कि वो दिल्ली गए हुए हैं। फिर 21 तारीख को बताता है कि वो कहीं चले गए हैं, उनका फोन नहीं लग रहा और वो मिसिंग है। फिर 21 तारीख को मिसिंग कंप्लेंट दी जाती है और तमाम इस पूरे प्रोसेस के दौरान एकमात्र फैमिली मेंबर जो उस वक्त घर पे मौजूद होता है वो उसकी बहन होती है। सुबह के 4 बजे के आसपास इस मर्डर को अंजाम दिया गया। राइफल से शूट की गई गोली। जिस फ्लोर पर रहते हैं ये पूरे परिवार, उसमें बेटी भी उस वक्त घर पर ही मौजूद थी। अगर 4 बजे सुबह में कोई गोली चलेगी तो बहन को पता कैसे नहीं चलेगा। और उसके बाद मर्डर को अंजाम देने के बाद बाकायदा डेड बॉडी को ग्राउंड फ्लोर तक घसीट के लाना, तो पूरे फैमिली में सिर्फ एक और शख्स, जो एक बाप बेटे के अलावा जो तीसरा कोई पर्सन मौजूद था, वो उनकी बेटी थी, छोटी बेटी, जो 11वीं क्लास की स्टूडेंट है। पूरी घटना के बाद जब ये जानकारी भी मिल गई कि पिता मिसिंग है, अगर वो मिसिंग ही रिप्रेजेंट कर रही थी पूरे आस पड़ोस में, तो वो बिल्कुल नॉर्मली बिहेव कर रही थी और अपने एग्जाम्स भी देने के लिए जा रही थी, अपने फ्रेंड्स से मिल रही थी। ठीक उसी तरीके से अक्षत भी बिहेव कर रहा था। और उसके बाद जब ये मर्डर की बात खुलती है तब जाकर जो जैसे कि जानकारी सामने आ रही है, हालांकि इसके बारे में अभी पुलिस आगे पुष्टि करेगी, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि बहन को भी इस पूरे घटना के बारे में जानकारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके ऊपर या तो डर कहें या प्रेशर कहें, उसने ये बात किसी और को नहीं बताई। आस पड़ोस के कुछ लोगों से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि जिस तरीके से वो लोगों से मिलजुल रही थी, खा पी रही थी, घूम फिर रही थी, उससे ऐसा नहीं लगता कि वो बिल्कुल भी इस बात को लेकर परेशान थी कि उसके पिता जो है वो कहीं मिसिंग है या पुलिस उनकी तलाश कर रही है। किस तारीख को बाकायदा पुलिस कंप्लेंट फाइल की गई थी जिसमें मिसिंग की बात कही गई थी, और उसके बाद तमाम जो रिलेटिव्स हैं वो उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे मानवेंद्र प्रताप सिंह को, लेकिन उनको ट्रेस नहीं किया जा पा रहा था। और इसको लेकर फैमिली में किसी भी तरीके की परेशानी जो है दोनों भाई बहन में ये नहीं देखी जा रही थी। तो इसी आधार पर लोग शक कर रहे हैं कि हो सकता है कि इस बात की जानकारी दोनों भाई बहन को थी, उसके अलावा किसी और को ये जानकारी नहीं थी, और उसके बावजूद very scary details. You know, it appears that both siblings were coordinating this. They were in tandem. They were aware that the father has been killed and still refused to talk about it. In fact, a very young girl, his sister, the culprit's sister, was perhaps aware of the whereabouts of her father. The fact that the father was in danger, still refused to share details with the police, and that's what's coming to light. अभिजीत, इससे पहले आपको जाने दूं, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि घर का जो माहौल है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट बताया जा रहा था। एक तरफ ये चर्चा है कि शायद प्रॉपर्टी के लिए, फाइनेंसेस के लिए अक्षत ने अपने पिताजी का खून किया, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि घर का माहौल काफ़ी स्ट्रिक्ट था, एक तरीके से डिसिप्लिन और प्रेशर था अक्षत पे काफ़ी सालों से। देखिए, जैसे कि रिश्तेदारों ने बातचीत में बताया कि 3 साल पहले भी अक्षत एक बार घर छोड़कर भागा था, 24 घंटे में फिर वापस आ गया था। उस वक्त उसके पिता ने उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए भी रखे थे और उसके अलावा उसको तमाम वो फैसिलिटीज़ दी थी जिससे कि वो आराम से रह सकता था। लेकिन जब वो घर छोड़कर भागा और घर में उसने बिजनेस पर कंट्रोल के लिए मांग करनी शुरू की, जिस वक्त वो बालिग भी नहीं हुआ था, वो 18 साल का भी नहीं हुआ था, तो तब से उसके पिताजी को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो
बैड कंपनी में चला गया है और उसकी संगत अच्छी नहीं है, वो अच्छे लोगों के साथ उठता बैठता नहीं, उसके कारण उसके अंदर इस तरीके के विचार आ रहे हैं और यही वजह है कि उसके पिता ने उस पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी थी। उसके फाइनेंसेस को उन्होंने कंट्रोल में ले लिया था और खर्चे के हिसाब से पैसे देना या फिर घर में डिसिप्लिन मेंटेन रखना, और ये भी कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण बताया जा रहा है, क्योंकि अक्षत की ये डिमांड थी कि 6 पैथ लैब्स हैं, 2 शराब के ठेके चलते हैं, इन बिजनेस पर वो धीरे धीरे अपना कंट्रोल चाहता था। बहुत जिद करने के बाद फादर ने एक पैथ लैब चलाने की उनको अनुमति दी थी, उसको मैनेज करने की अनुमति दी थी, लेकिन अक्षत के जो एस्पिरेशंस थे वो ज़्यादा थे। वो अपने आप को उनका इनहेरिटेंस मानता था और वो चाहता था कि ये सारे जो प्रॉपर्टी है या फिर बिजनेस है, वो सारी चीज़ों को वो संभाले, वो टेक ओवर करे। तो इस तरीके के डिस्प्यूट भी फैमिली में बताए जाते हैं, लेकिन पुलिस अभी फिलहाल तमाम एंगल से इसकी जांच करी कि क्या कोई और एंगल भी हो सकता है, क्योंकि 8 साल पहले इनके माँ की डेथ हो चुकी थी और उस एंगल से भी पुलिस जो है जांच कर रही है। जी, ऑल राइट अभिजीत, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दोज डिटेल्स. Complexities now emerging as far as that family dispute is concerned, which has turned murderous with a young boy as young as 19 years old, killing his own father for what appears to be a matter of control over property and finances in the family business. Let's quickly listen into reactions of the police department. गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था कि मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जिनकी उम्र लगभग 49 साल है और वो 20 तारीख को सुबह से अपने घर से कुछ बता के चले गए थे और उसके बाद से नहीं आए हैं। इस संबंध में पुलिस जांच कर रही थी। अब इसका आज अनावरण ये हुआ है कि उनका जो पुत्र है 19 साल का अक्षत प्रताप सिंह, उसने ही अपने पिता की हत्या घर में ही एक राइफल से गोली चलाकर कर दी थी, जिससे उनकी मौके पर मृत्यु हो गई थी। जो मुलजिम है वो पुलिस की कस्टडी में है, उसने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है और घटनास्थल का निरीक्षण हम लोगों के द्वारा कर लिया गया है। फोरेंसिक की टीम साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और जो मुलजिम है उसने ये भी अभी बताया है कि उसने जो साक्ष्य को छुपाने की दृष्टि से जो शव है उसके कुछ टुकड़े किए थे, जिसमें कुछ पार्ट्स को उसने एक जगह कहीं फेंक दिया है और जो बॉडी का जो धड़ है वो ग्राउंड फ्लोर से बरामद भी हुआ है। इस सिलसिले में अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है और साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं।